Welcome to the next lecture of health and disease. In the last lecture we have seen some warning signs of consuming drug and alcohol. In the last lecture we have discussed how drug and alcohol addiction creates problem in the individual, those who are addict. How does it affects the body of the individual? How does it affects the behavior of the individual? What does it make the difference in physical and physiological and psychological health? Now, apart from all those adverse effects, there are some other effect also. They are not only addiction is not only responsible for affecting the individual, but they also affect the other people. That means those who are associated with, those who are connected with the addict. That means addiction not only create problem for themselves, but they also create problem for the other people of their house. They also create problem in the society in which they live. They also create problem in the institution where they work. So this type of thing we are starting today. There may even be some far-reaching implication of drug and alcohol abuse. That means some other type of effect apart from affecting the individual, those who are addict. If an abuser is unable to get money to buy drug or alcohol, he she may turn to crime. अगर उसको ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, ड्रग और अल्कोहल ख़रीदने के लिए अगर उसे पैसा नहीं मिलता है, तो वो उसके अंदर ऐसा एडिक्शन क्रिएट हो गया है कि वो उस अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो चोरी कर सकता है या कोई भी क्राइम कर सकता है, बिकॉज उसे वो ड्रग या अल्कोहल चाहिए. ड्रग और अल्कोहल न मिलने की सूरत में वो पैसे को किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश करेगा. वो चोरी कर सकता है या अपने घर से पैसा चुरा सकता है या आसपास से सोसाइटी से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. At time, a drug and alcohol addict become the cause of mental and financial distress to her entire family and friend. वो अपना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, अपनी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल ही रहा है, साथ ही साथ अपने घर वालों पर या अपनी सोसाइटी पे एक अलग तरह का मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक अलग तरह का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसके घर वाले अगर उसे पैसा देंगे तो वो ड्रग कंज्यूम करेगा और पैसा नहीं देंगे तो वो क्राइम परफॉर्म करेगा. इसके वजह से घर वाले भी डिस्टर्ब रहेंगे. Those who take drug intravenously, डायरेक्ट इंजेक्टिंग इनटू द वेन यूजिंग अ निडल एंड सिरिंज. बहुत देखो, ड्रग कंजम्पशन के अलग अलग मेथड हैं. उसमें से एक मेथड ये, सम पीपल दे टेक द ड्रग ओरली, सम टाइप ऑफ ड्रग्स आर इनहेल्ड, सम टाइप ऑफ ड्रग्स आर स्मोक्ड, सम टाइप ऑफ ड्रग्स आर इंजेक्टेड इंट्रावेनसली. यानी कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिसे डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है. यूजुअली जो एडिक्ट होते हैं वो खुद ही ट्रेंड हो जाते हैं, वो अपने से इंजेक्शन लेते हैं. तो it is very common if they are using same needle, if they are using same syringe again and again. We know the डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सेम निडल. इससे कोई भी ऐसी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है. अ वेरी कॉमन डिजीज वी नो विच ट्रांसमिट बाय दिस मेथड इज HIV एंड हेपेटाइटिस B. तो ऐसे इंडिविजुअल में HIV और हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के या कोई भी ऐसी डिजीज के इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, बिकॉज दे आर यूजिंग सेम निडल again and again. Same needle or same syringe can be shared by many drug addict, because many people, if they are living in group, if they are drug addict, all of them are taking intravenous drug, तो they may share same needle. तो इसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. इसमें जानलेवा डिजीज हेपेटाइटिस B और HIV होने के भी चांसेस हैं. The next part is use of alcohol during adolescence may also have long-term effect like loss balance. अगर अल्कोहल एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन होता है, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. लिवर सिरोसिस. नाउ लिवर सिरोसिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द लिवर. It is a chronic liver damage from variety of causes. In this case, it is due to consumption of alcohol or drug, leading to scarring
एंड लीवर फेलियर, इसमें लीवर के टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, यहाँ तक कि लीवर फेल हो जाता है दोज हु कंज्यूम अल्कोहल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पेनक्रियाटाइटिस, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, इसमें पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है, पेनक्रियाज के टिश्यू डैमेज होते हैं, पेनक्रियाज से एंजाइम के सिक्रीशन और हार्मोन के सिक्रीशन पर उसका इफेक्ट होता है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, और ऐसा करने से अगर एडोलेसेंस एज ग्रुप में कोई लॉन्ग टर्म कंज्यूम करता है, बार बार कंज्यूम करता है, तो एडल्ट होने के बाद उसका जो डोज है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कंज्यूम करने की, वो इंक्रीज होगी एंड इट मे कॉज इवन सीवियर इफेक्ट। Chronic use of drug and alcohol damage nervous system. Long-term consumption of drug and alcohol, it may show adverse effect on the nervous system. वो हमारे nervous system को damage कर सकता है, brain और spinal cord, nerves, neuron को damage कर सकता है, liver cirrhosis, liver के tissue को damage कर सकता है। Use of drug and alcohol during pregnancy adversely affect the fetus. अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर तो हो गई, उसकी बॉडी के साथ साथ उसका इफेक्ट उसके डेवलपिंग फीटस पे, उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो पर होगा, डेवलपिंग फीटस पर होगा, और उसमें भी कुछ एबनॉर्मलिटीज देखी जा सकती हैं। Another misuse of drug is that certain sports person use drug to enhance performance. As we have listened in past and we know the different type of drugs are used by different sports person. In athletes, in different sports, in wrestling, people use different type of drug to improve their performance, to accelerate their performance. They misuse narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormones. These are the different categories of chemicals, different categories of drugs which they are used by sports person. These drugs are narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and overall improvement in their performance. That means by using this drug, they can increase their muscle strength, they can increase their muscle power, उनके अंदर ताकत ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मूड में वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अंदर ज़्यादा जोश आ जाता है। तो इस तरह के ड्रग यूज़ करना इलीगल है। स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में या किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसे ड्रग्स को यूज़ करना इलीगल है। कई बार स्पोर्ट्स पर्सन को इस क्राइम के लिए पेनल्टी दी जाती है, उन्हें स्पोर्ट्स से निकाल दिया जाता है, बट स्टिल मैनी स्पोर्ट्स पर्सन दे आर यूजिंग एट डिफरेंट लेवल। कई बार उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि उन्होंने ऐसे ड्रग्स तो नहीं कंज्यूम किए जिससे उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, परफॉर्मेंस एक्सिलरेट हो जाए। साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, as just now we have seen different type of anabolic steroids are used by sports person or different type of person, those who are performing at different level। इस anabolic steroids के consumption से बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मेल फीमेल दोनों की बॉडी पे अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। सो द साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इज़ गिवन इन दिस चार्ट। इट इंक्लूड्स masculinization. Masculinization means developing features of male in the female। अगर ऐसे ड्रग्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ड्रग फीमेल कंज्यूम करती हैं तो उनके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होते हैं, मेल वाले कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, विच इंक्लूड्स इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, उनका नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, मूड स्विंग, मूड स्टेबल नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी चेंज होगा, अनस्टेबल माइंड होगा। डिप्रेशन कैन बी सीन इन सच वुमेन, वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएंगी, किसी भी रीज़न से डिप्रेशन उनके अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें जो नंबर ऑफ डेज़ हैं, जो रूटीन है, ऐसे ड्रग कंज्यूम करने से उस साइकिल पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल पर उसका इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ डेज़ आगे पीछे होने लगते हैं। So that is the disturbance in reproductive cycle also।
एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, उनके फेस पे, मूस्टेच की पोजीशन पे या बियर्ड्स की पोजीशन पे कुछ हेयर ग्रो होने लगेंगे या बॉडी पे हेयर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो हेयर का डेवलपमेंट विच इज़ बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल, कि मेल्स में फेशियल हेयर और बॉडी हेयर ज़्यादा होते हैं जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं, स्टेरॉइड्स ड्रग कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से उनमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होता है, फेस पे हेयर ग्रो होना, बॉडी पे हेयर ग्रो होना, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। Clitoris is a part of female reproductive system. It is a part of external genitalia. Female में vaginal opening के just ऊपर की तरफ एक छोटी सी इमेजिनेटेड बॉडी है that is called as clitoris, which is considered to be the most sensitive part of female reproductive system. तो clitoris become more prominent. The enlargement of clitoris is seen due to consumption of such drug. Deepening of voice, उनकी वॉइस जो है वो थोड़ा सा डीप यानी ब्रॉड हो जाएगी, उनकी वॉइस थोड़ा सा मेल से रिजेंबल करने लगेगी, उनकी वॉइस पहले से चेंज हो जाएगी, वॉइस की जो पिच थी वो चेंज हो जाएगी, यानी उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी, ब्रॉड, मेल जैसी रिजेंबल करेगी. सो दिस ऑल चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फीमेल इफ द फीमेल कंज्यूम सच टाइप ऑफ ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम. Now what all changes occurs in male if they consume such type of steroids to increase their performance? In male it includes acne. Acne is a skin infection. Skin पे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन विच इंक्लूड्स पिंपल्स. तो स्किन पे एक्नी का डेवलप होना, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, दिस इज़ कॉमन फॉर फीमेल एज वेल. उनका नेचर एग्रेसिव हो जाएगा, ज़्यादा गुस्से वाले हो जाएंगे, ज़्यादा जोश उनके अंदर आ जाएगा. मूड स्विंग मेल्स में भी होता है, डिप्रेशन मेल्स में भी होता है. रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, उनके जो टेस्टिकल हैं, उनका जो टेस्टिस और स्क्रॉटम है उसकी साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, साइज़ छोटी हो जाएगी. इंक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की जो प्रोडक्टिविटी थी, स्पर्म की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और स्पर्म का प्रोडक्शन कम होना मे लीड्स टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो इन मेल. तो what happen due to prolonged consumption of such type of drug may affect the fertility of males. किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, उनके वाइटल ऑर्गन, किडनी और लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ेगा. मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट की पोजीशन पे फैट डिपॉजिट होगी और वो थोड़ा एनलार्ज हो जाएंगे, थोड़ा सा फेमिनाइन कैरेक्टर की तरह रिजेंबल करेगा. प्री मैच्योर बाल्डनेस, टाइम से पहले उनके सर से बाल कम हो जाएंगे, बाल ज़्यादा गिरने लगेंगे. तो प्री मैच्योर बाल्डनेस, वक्त से देखो बाल्डनेस होना इट इज़ अ जेनेटिक ट्रेट विच इज़ वेरी कॉमन इन मेल. यहाँ टाइम से पहले बाल्डनेस होना, दिस माइट बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स. Enlargement of prostate gland. Prostate gland is one of the accessory gland found in males. It is the reproductive gland. It is responsible for the secretion of prostatic fluid, जो sperms के activation के लिए और sperm के flow के लिए responsible है. तो prostate gland का enlargement होना. Now what happen when the prostate gland enlarge in males? prostate gland के अंदर से पास होता है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, और यूरेथ्रा के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके यूरिनेशन में, मिक्टुरेशन में प्रॉब्लम आता है. उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज डेवलप होती है. यूरिन पास करते हैं तो पूरा यूरिन पास नहीं होता है, बिकॉज देर इज़ अ हर्डल इन द यूरेथ्रल पैसेज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से यूरिन प्रॉपर पास नहीं होगा. दिस अफेक्ट मे बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज़. अगर वो बार बार इसको यूज़ करते रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको यूज़ करते रहे, सो दिस इफेक्ट माइट बी प्रोलॉन्ग्ड और दिस इफेक्ट माइट बी परमानेंट फॉर द लाइफ टाइम. ऐसे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं मेल्स में. नेक्स्ट साइड हेडिंग इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन. A very common proverb, as we know, prevention is better than cure. That means instead of using different type of drugs, instead of consuming different type of drug, better not to consume any type of drug. The different type of drug consumed by the different individual
लोग अलग अलग तरह के ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। उन सब का हमारी लाइफ पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे, हमारे बिहेवियर पे, नॉट ओनली हमारे ऊपर बल्कि हमारे घर पे और हमारे सोसाइटी में भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो बेटर नॉट टू यूज़ एनी टाइप ऑफ ड्रग, बिकॉज क्योर करना, क्योंकि ये ड्रग्स हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को डैमेज करते हैं, तो उस डैमेज का ट्रीटमेंट करना विल बी मच डिफ़िकल्ट। सो बेटर नॉट टू यूज़ एनी टाइप ऑफ ड्रग। Now this proverb, prevention is better than cure, holds true for all addiction. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at the young age, more during adolescence. जितने भी एडिक्शंस होते हैं, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन है, स्मोकिंग है, टोबैको कंजम्पशन है, या अल्कोहल या ड्रग्स हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन की यूजुअली जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो एडोलेसेंस एज में ही होती है। टीनेजर से ही इनकी शुरुआत होती है और कई बार ये लाइफ लॉन्ग चलती है। इंसान के मरने तक भी ये एडिक्शंस छूटते नहीं हैं। तो ये एडिक्शन से हम बचें और यंग जनरेशन को हम अवेयर करें कि नॉट टू कंज्यूम एनी थिंग्स, नॉट टू कंज्यूम एनी सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इंडिविजुअल एडिक्ट। अब एडोलेसेंस में एडिक्शन क्यों होता है, हमने पहले पढ़ा, सेवरल रीज़न, फ्रेंड के प्रेशर की वजह से, या साइकोलॉजी की वजह से, या उनकी थिंकिंग की वजह से, मूड स्विंग की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से, जो भी रीज़न से उनमें एडिक्शन होता है, तो वो एडिक्शंस से हम बचें। इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट पुश एन एडोलेसेंस टुवर्ड यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल। हम उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, उस सिचुएशन को पहचानें जिस सिचुएशन की वजह से लोगों में एडिक्शन या अल्कोहल या ड्रग का कंजम्पशन स्टार्ट हो सकता है, एंड टू टेक रेमीडियल मेजर वेल इन टाइम। कि अगर कोई डिप्रेस है तो उसके डिप्रेशन की वजह को हम फाइंड आउट करें इससे पहले कि वो एडिक्ट हो जाए, इससे पहले वो अल्कोहल और ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट करे। हम उस सिचुएशन को सॉल्व करें, उस सिचुएशन का सल्यूशन निकालें। In this regard, the parents and teacher have a special responsibility. अब जो एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो टीचर हैं, जो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं, जो सिचुएशन को समझ सकते हैं, जो बच्चे के मूड को और उसके डिप्रेशन की वजह को समझ सकते हैं, वो शायद उनकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए एडोलेसेंस के साथ एक ओपन रिलेशनशिप रखना, पेरेंट्स और टीचर का एक ओपन इन द सेंस कि वो अपनी थिंकिंग को, वो अपनी सोच को, वो अपनी फीलिंग्स को, वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एडिक्शन. So this all thing is given regarding prevention and control for the addiction. Now few additional thing about this is withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms क्या है कि when the person quit or when the person reduce the dose, जिसका वो एडिक्ट था, चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग हो, जब वो अपने डोजेज को रिड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी कम करता है या उसको क्विट करता है टोटली, तो उसको क्विट करने की वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ दिनों तक वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, तो उसके क्विट करने से जो सिम्टम्स डेवलप होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज विथड्रॉवल सिम्टम. द वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट of detoxification can occur after reducing or ceasing drug or alcohol. जो उसने सालों तक या बहुत टाइम तक ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम किया है, उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट उसकी बॉडी से इतना जल्दी नहीं जाएगा. उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्विट करने के बाद भी या डोज को रिड्यूस करने के बाद भी बहुत दिनों तक, सालों तक देखा जाएगा. यहाँ पर कुछ विथड्रॉवल सिम्टम्स दिए हैं नीचे. विथड्रॉवल सिम्टम्स यानी वो ड्रग अगर ना मिले या वो ड्रग किसी इमरजेंसी के केस में ना मिले या वो इंटेंशनली ड्रग के डोज को कम कर रहा है या इंटेंशनली वो क्विट कर रहा है, तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. हेडेक है, नोजिया है, एंजाइटी है, स्वेटिंग है, इंसोम्निया है, decreased appetite hai. So these are the few symptoms given in your book. I mean, it is not given in the book, this is the additional part. Now prevention of drug abuse. Prevention of drug abuse.
किस तरह से हम ड्रग कंजम्पशन को रोक सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को एडिक्ट होने से, पर्टिकुलरली एडोलेसेंस को हम ड्रग का एडिक्ट होने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एजुकेट। दैट मीन्स उसको प्रॉपर नॉलेज हो कि व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल और स्मोकिंग ऑन द बॉडी। किस तरीके से ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, हमारी बॉडी में क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसका प्रॉपर नॉलेज हो तो शायद वो एडिक्ट ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। टीचर एंड पेरेंट प्ले ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस बिकॉज एडोलेसेंस जब ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और टीचर और पेरेंट्स उसके प्रॉपर काउंसलर हो सकते हैं, उसको ऐसी चीज़ों से रोक सकते हैं। एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर काउंसलिंग उनके फ्यूचर को बचा सकती है। डिस्कस हाउ हार्मफुल एंड डेंजर ऑफ ड्रग अब्यूज़। टीचर्स या पेरेंट्स बच्चे को समझाएं या उनको एजुकेट करें कि ड्रग कंज्यूम करना कितना ज़्यादा हानिकारक है, कितना ज़्यादा उनकी बॉडी पर, उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम। Keeping different type of awareness program at the different level, at the school level, at the college level, at the society level, at the job place level, अलग अलग जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके या स्ट्रीट प्ले के थ्रू कैसे भी लोगों को अवेयर किया जाए या एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए कि हाउ दिस ड्रग अब्यूज़ इज़ हार्मफुल फॉर अस। जैसे आपके सिलेबस में, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये जो ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट डाला हुआ है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम ओनली। ये आपको एजुकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए ड्रग का हमारी बॉडी पर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है वो समझाने के लिए दिस पार्ट इज़ इंक्लूडेड इन द टॉपिक। यू माइट हैव सीन सेवरल एड्स कमिंग ऑन द टीवी और इंटरनेट कि वो जो ड्रग्स के अगेंस्ट में है कि ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम का पार्ट है। एनकरेज स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। एडोलेसेंस के अंदर, एडोलेसेंस दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल, तो उनकी एनर्जी को हम राइट पाथ पे लगाएं, उनसे क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटीज़ कराएं, उनको स्पोर्ट्स में या दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि वो ड्रग एडिक्ट ना हो। वेल डिफाइंड स्कूल विथ बाउंड्रीज़। वेल डिफाइंड स्कूल विथ बाउंड्रीज़ यानी बच्चों का जो बाउंड्री है, जो उनकी लेवल है, उनको किस हद तक जाना है वो वेल डिफाइंड हो, बच्चों को पता हो कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। दैट विल ऑब्वियसली मेक द डिफरेंस। वॉच आउट एक्टिविटीज़ क्लोज टू स्कूल एंड योर चिल्ड्रन। बच्चे की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी पे पेरेंट्स और टीचर नज़र रखें, उसको मॉनिटर करें कि बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। दिस ऑल थिंग मीन्स कीपिंग प्रॉपर वॉच ऑन द चाइल्ड, ये बच्चे को एडिक्शन से बचा सकता है। सो दिस ऑल थिंग इज़ गिवन। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है हेल्थ एंड डिजीज़ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सो दिस चैप्टर कंप्लीट्स हियर।